I am Dr. Vinod Kothari. I work at Bhopal Sai Krapa Medical Care Center. Today I present stomach acid imbalance, clinical implication and their impact on diabetes. This is topic, and stomach acid imbalance or dyspepsia or acid reflux causes significant clinical implication for digestive health. Understanding the interrelationship between stomach acid imbalance and digestive health is essential for effective management and prevention. The causes of stomach acid imbalance, that is diet. First most important cause is diet. The more spicy or fatty food can exacerbate stomach acid production, leading to acid imbalance. And the another cause is chronic stress and anxiety. Chronic stress and anxiety is also the most important cause for acid imbalance. This trigger acid overproduction from the internal lining of the upper gastrointestinal tract, disrupting the delicate balance. And some other causes, certain medications like NSAIDs, antibiotics, increase the risk of acid reflux by affecting the stomach lining. Infections such as H. pylori, chemotherapy, tobacco smoking, alcohol intake, they also disrupt the acid imbalance. The sign and symptoms for acid imbalance is heartburn, chest pain, regurgitation, abdominal pain, bloating, nausea and vomiting, weight loss, weight gain, clinical implication, progressive dysphagia, hematemesis, melena, or reddish stool. The clinical implications, stomach acid imbalance may associated with family history of upper gastrointestinal malignancy, long-term dyspepsia, or acid reflux. Can lead to iron deficiency anemia, recurrent emesis, damage to the esophageal lingual causes complications like Barrett's esophagus or esophageal cancer. The inadequate nutrient absorption causes deficiency of health. Disruption of stomach acid environment can impair the breakdown and digestion of food, leading to gastric problems like bloating, gases, and indigestion. An imbalance in acid level can contribute to dysbiosis in the gut microflora, affecting overall digestive function. Chronic acid reflux is associated with an increased risk of developing conditions such as gastrointestinal reflux disease and peptic ulcers. How to prevent? To prevent and how to manage. So first is preventive measures: adopting a balanced diet rich in fiber, fruits, and vegetables. Preventive measures and management: the adoption of balanced diet rich in fibers, fruits, and vegetables. Stress management application: mindfulness, relaxation exercises, yoga can manage the acid imbalance. Smoking, stop smoking. Smoking leads to other complications also, like coronary artery disease, Buerger's disease, and alcohol regulations. Alcohol is also important cause. It's important to regulate the alcohol intake. Healthcare professional consultation regarding advice on management strategies and medications. Stomach acid imbalance is for reaching clinical implication on digestive health. Proactive measures for prevention and management are warranted. Physician and healthcare profession can guide regarding the preventive measures and help detect the underlying causes. Improving digestive health confers metabolic impact and aids in preventive chronic and metabolic disease, enhancing the overall quality of life. Thank you. 12 minutes. एसिड इम्बैलेंस जो होता है ना, उसमें कई सारे कॉजेज जैसे अभी अभी देखे अपने, तो उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट कॉजेज रहता है डाइट. डाइट में आपको कैसे लेना, डाइट क्या लेना और डाइट के टाइमिंग्स क्या होना. तो नॉर्मली डाइट जो सुबह जब मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट का टाइम होना चाहिए 7 to 9, 7 से 9 के बीच में ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए. फिर आपको कम से कम 4 घंटे आपको कुछ नहीं लेना है. फिर आपको जो दोपहर का डाइट है वो नॉर्मल डाइट लेना रहेगा और उसका टाइमिंग रहता है 1 बजे से लेकर 3 बजे. इसके बाद फिर आपको 4 घंटे कुछ नहीं लेना है और फिर आपको 7 बजे के पहले एक डाइट लेना है. डिनर जो आज की कंडीशन हम देखें तो लोग रात को डिनर लेते हैं 11 बजे. तो ऐसा नहीं करना है, उससे एसिड इम्बैलेंस ज्यादा होता है. रात को 11 बजे आपने खाया और हेवी फूड खाया और उसके बाद सो गए, तो वो पूरा जो है आपका सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको अफेक्ट कर सकता है. इसलिए रात का खाना जो है आप हमेशा कोशिश करना चाहिए कि शाम को ले लें, 7 बजे के पहले ले लें.
और रात में फिर अपन ज्यादा कुछ खाएं, ताकि जो जो इंटेस्टाइन है, हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो अच्छे से वर्क कर पाए, उसको पूरा टाइम मिले खाना पचाने के लिए। जब हम कई बार हम बात करते हैं ओवरनाइट फास्ट, जो फास्टिंग की बात करते हैं, तो फास्टिंग का जो कंसेप्ट आया वो भी यही है कि इसके बाद जो हमारा पेट है वो उसको आराम मिले। तो इसलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग आज जो नई बात चालू हुई है, इंटरमिटेंट फास्टिंग, उसमें यही है। तो आपको शाम का खाना कोशिश करके 7 बजे तक खाना रहेगा, और शाम वाले मील में हमेशा फ्रूट्स लेना चाहिए, लाइट खाना खाना चाहिए, जैसे दलिया खा सकता है। ये तो हो गया डाइट का। अब बाकी जो आपके जो व्यसन है, जैसे अल्कोहल है, स्मोकिंग है, टोबैको है, ये भी आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको डिस्टर्ब करते हैं, उससे एसिड सिक्रीशन ज्यादा होते हैं। तो हमें अल्कोहल को कट ऑफ करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, टोबैको नहीं चू करना चाहिए। टोबैको च्यूइंग करने से और भी कई सारे चीजें हो जाती है, जैसे हार्ट डिसीज हो जाती है, या और आर्टरी की डिसीज हो जाती है। कई सारे कैंसर्स होते हैं जो टोबैको के कारण होते हैं, माउथ कैंसर होते हैं, टंग कैंसर हो जाता है, चिक कैंसर हो जाता है, तो ये लंग कैंसर होता है। ऐसी चीजें टोबैको हमें करना चाहिए। दूसरा है स्ट्रेस। तो आज जो हमारी जो भौतिक युग हो रहा है, भौतिक युग चल रहा है, इसमें हम भाग रहे हैं, एक तो भागने के कारण स्ट्रेस ज्यादा है, शरीर को आराम मिल नहीं रहा है, और बस आदमी भागता जा रहा, हमारी जिंदगी भागते हुए। तो इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस हम ले रहे हैं, रात को आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है। तो इन चीजों को भी हमें बचना पड़ेगा, और इन चीजों से बचने के लिए हमें कई रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ेगी, वॉक कर सकते हैं या और कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं। दूसरा योगा कर सकते हैं। योगा में भी आप जो है सुबह उठ के आप लगातार योगा करें। तो ये जो है कारण बताएं और उपाय भी, सब के बावजूद भी नहीं हो पाए एसिड मैनेजमेंट, तो हमें फिर मेडिकेशन पे जाना पड़ता है। मेडिकेशन में जो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स रहते हैं, या जो एंटासिड्स रहती है, वो हमें फिर प्रिस्क्राइब करना पड़ता है। लेकिन कोशिश यही करना चाहिए इसमें कि जो हम कारण है इनको निवारण करें, और उन्हीं के हिसाब से इलाज है। ये जो नया जो हम डाइट की और जो एक्सरसाइज की, योगा की बात करते हैं, हमारी इंडियन पॉपुलेशन के हिसाब से ये बहुत, हमारे जो ऋषि मुनि है, महर्षि है, वो पहले से ये सब करते आ रहे हैं, कई उन्होंने हमें सिखाया है। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और भरपूर नींद लेना चाहिए, उससे डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा सही रहेगा। खाने के बाद जो है, जो जिस तरह से हमारे मुनि बोलते हैं कि हमें छाछ पीना चाहिए, तो उसका वो ये कि खाने के बाद खाना पचाने के लिए जो है वो एसिड बैलेंस को, इम्बैलेंस को जो है रेगुलेट करता है। ये सब कारण रहते हैं। और एसिड इम्बैलेंस के जो साइंस रहते हैं, जैसे ब्लोटिंग, पेट में ज्यादातर लोग आज जो इंडियन पॉपुलेशन में हर दूसरा तीसरा आदमी ये बोल रहा मुझे पेट में गैस बन रही है। तो ये जो गैस के कारण है, ये अपने को इन सब चीजों से निवारण कर सकते हैं। और दवाइयाँ जो है, जो आती है मार्केट में, दवाइयाँ आती है, तो वो दवाई अपन ले सकते हैं, जिसमें एंटासिड से, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर से ले सकते हैं। और एच पाइलोरी अगर इन्फेक्शन, तो एच पाइलोरी का ट्रीटमेंट ले सकते हैं।